A very good morning to all the students. Once again, we discussed a new topic from the chapter number 22, that is in financial statement with adjustment. And in this chapter, firstly we discussed what is the meaning of adjustment and which type of the adjustment creates effect on the financial statement. That is, when we prepare the financial statement, that is in trading account, profit and loss account and balance sheet, how we will treat such adjustment at the time of the preparation of financial statement. So without creating any delay, let's we discuss the first few adjustment which are related to the financial statement. The first adjustment of today's session is the adjustment related to the goods. Financial statement with adjustment. So the first adjustment will be which are related to the goods is the first adjustment is a goods distributed as free sample. Goods distributed as free samples. It means if we distribute the sample, if we distribute the goods as a sample, it affects the two aspects of the financial statement. Firstly, it will be deducted from purchase. It will be deducted from purchase in trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज होता है उसमें से इसको डिडक्ट कर दिया जाता है. एंड सेकेंड, इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एडवर्टाइजमेंट. What will be the journal entry for goods distributed as free samples? The journal entry will be advertisement account debit to purchase. Okay. Now the second adjustment which are related to the goods is drawing in goods. It means when owner withdraw the goods from the business for personal use. It means अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है, so it is called drawing in goods. And firstly, it affect it deducted from the purchase. Deducted from purchase. It means it is the same effect. परचेज में से माइनस करते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. एंड सेकेंड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि ये ड्राइंग है, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट. यानी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे. सो एंट्री विल बी ऑफ drawing account debit to purchase. Next adjustment which are related to the goods is goods distributed as charity. Goods distributed as charity. It means when the businessman distribute the goods for charity,
यानी अगर चैरिटी के लिए गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंपली द जनरल एंट्री विल बी अ चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस. The journal entry will be charity account debit to purchase. And what will the effect? The same effect. कि गुड्स के साथ आप कुछ भी करेंगे तो आपका जो परचेज है वो इफेक्ट होगा. ओके, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्टली इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट. And second, the charity, the name of the charity, as you can see that the charity will be shown in the debit side of the profit and loss account. Debit side of profit and loss account as charity. एंट्री आपके सामने है. तो ये फर्स्ट 3 ऐसे सिचुएशंस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, जहां पर हम गुड्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, दिस इज एन एंट्री. इट विल बी इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल इफेक्ट स्टेटमेंट. प्लीज नोट डाउन. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू द गुड्स, इट्स गुड्स लॉस बाय फायर. एन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम. तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है बेसिकली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीनों एस्पेक्ट, दैट इज एन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों जगह इसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमें. प्लीज नोट डाउन द एडजस्टमेंट इज लॉस बाय फायर. सो जब गुड्स लॉस्ट होता है बाय फायर तो उसकी एंट्री आपको पता ही है, एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस. तो उसका एक इफेक्ट तो क्लियर हो गया कि लॉस बाय फायर को हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे परचेस में से. डिडक्टेड फ्रॉम परचेस इन ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. सेकंड, इसी का जो पार्ट है आप कह सकते हो, जब आपका गुड्स लॉस्ट होता है बाय फायर तो कुछ सिचुएशन होती है जहां आपने इंश्योरेंस कराया है, कहीं आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है. अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो सिर्फ यहीं तक काम होगा. लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा दिया है, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, अब इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दिया है, तो उसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम. अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट कर दिया, ठीक है, तो उसकी एंट्री, उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ने जितना क्लेम एक्सेप्ट किया उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. उसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे एज इंश्योरेंस कंपनी के नाम से. ठीक है, इसका जो इफेक्ट, इसकी जो एंट्री होती है वो आपको पता ही है. इसकी जो एंट्री होती है वो होता है इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू परचेस. ओके, फिर आपको पता है कि अगर आपका लॉस हुआ 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपये दे दिया है, ठीक है, और 2,000 नहीं दिया, तो जो नेट लॉस है आपका, नेट लॉस बाय फायर है या फाइनल लॉस बाय फायर है, इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो थर्ड एंट्री जो है आपकी वो क्या होता है कि जो आपका लॉस बाय फायर है कि आपके जो लॉस है, जितना आपको क्लेम नहीं मिला, सो इसकी एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. और इसे हम लोग क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कौन सी अमाउंट लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे जितना टोटल लॉस हुआ उसमें से माइनस इंश्योरेंस क्लेम। जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है उसके बाद जितना पैसा अगर आपको नहीं मिला है वो आपके इस पार्ट में एक्सेप्ट होगा। उसको नोट डाउन कर लिए। कुछ और एडजस्टमेंट भी बचे हुए हैं जिससे हम रिकॉल कर लेते हैं पहले और फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं न्यू टाइप ऑफ दी एडजस्टमेंट पे। So now let's we discuss the effect of goods and service tax at the time of the preparation of the financial statement, and we see that what are the effect of GST while we prepare the trading account, profit and loss account and the balance sheet. You know very well there are basically two types of the GST. Okay, there are two kinds of the GST. First is, you know very well, GST paid and second is GST received. Okay, या तो हम GST पे करते हैं या रिसीव करते हैं। So when we paid the GST, it is called input GST. It is called input GST. And when we receive the GST, it is called output GST. And the input GST have three types: input IGST, input CGST, input SGST. Okay, and when we are talking about the output GST, it is also three types: output IGST, output CGST and output SGST. Okay, so when we are talking about the classification of the GST, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि GST को उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जगह देते हैं। सो कैसे शो करते हैं? सो GST अगर हम पे करते हैं, सो इट इज योर एसेट्स, तो इसे हम एसेट साइड में शो करते हैं, चाहे वो इनपुट IGST हो, चाहे CGST हो, चाहे वो SGST हो। लेकिन अगर हम GST रिसीव करते हैं, सो इट इज माई लायबिलिटी। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज कि जब भी GST आपने पे किया है उसको हम सेट ऑफ करेंगे लायबिलिटीज, उसे हम सेट ऑफ करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपने GST पे भी किया है, GST रिसीव किया है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इनपुट GST को आउटपुट GST से सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद जैसी नीड होगी, नीड मतलब अगर एसेट्स पार्ट ज़्यादा है तो एसेट साइड में शो करेंगे, और लगे लायबिलिटीज पार्ट ज़्यादा है तो हम लायबिलिटीज में शो करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम के केस में GST आपका चार्ज होगा। ठीक है। इन केस ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, GST विल बी चार्ज। ओके, इस पे भी GST चार्ज होता है, इस पे भी GST चार्ज होता है। बट इन केस ऑफ आउटपुट कह रहा हूं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, अगर कोई आपने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रखा है यानी ड्यू हो गया बट आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, या कोई इनकम आपको रिसीव हो गई है, रिसीव नहीं हुई है लेकिन ड्यू हो गई है, तो इन दोनों केस में GST जो होता है वो चार्ज नहीं, GST कैलकुलेट किया जाता है और इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड भी करते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस इनकम के केस में GST सेपरेटली चार्ज नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी रिसीव या पे हो चुकी होती है। सो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
So after discussing a lots of the adjustment, let's we move to the typical important and tricky adjustment at the time of the preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet. And you know very well what is the meaning of financial statement. Financial statement is a statement which include the two statement, income statement and position statement. In the income statement, we prepared trading account and profit and loss account, and in the position statement, we prepared the balance sheet. And you know very well, we include, adjust the various type of the adjustment like outstanding, prepaid, accrued, advance, interest on capital, interest on drawing, loss by theft, loss by fire, goods distributed as free sample, goods distributed as a charity, goods withdrawn for personal use, as well as we discuss about the bad debts, provision for bad debts, provision for discount on data. So now let's we move to the last portion of the adjustment, that is an deferred revenue expenditure. So what is deferred revenue expenditure? The deferred revenue expenditure is an expenditure which are revenue in nature, but its utility, its benefit derived over a number of years. So what is deferred revenue expenditure? Deferred revenue expenditure वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जिनका नेचर रेवेन्यू होता है लेकिन इनका बेनिफिट जो है वो कई सालों तक आपको मिलता है. तो बेसिकली इसका जो दो इफेक्ट पड़ता है, पहला इफेक्ट पड़ता है जो रिटर्न ऑफ पार्ट है, रिटर्न ऑफ पार्ट शोन होता है इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस पार्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है जो अभी तक हमने कवर अप नहीं किया है उसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, जस्ट लाइक अ फिक्स्ड टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स. यू नो वेरी वेल इट इज एन फिक्टिशियस एसेट्स. एक तरह का फिक्टिशियस एसेट्स होता है जिसको हम फ्यूचर में सेल नहीं कर सकते, कोई कैश रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इन एक्सपेंसों को हम मान लेते हैं कि हमारी एसेट्स है, इसीलिए इनकी वैल्यू क्या होती है, हर साल राइट ऑफ होती है. और बाकी बैलेंस अमाउंट जैसे हमने 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया और ये एक्सपेक्ट किया कि 5 साल तक उससे बेनिफिट मिलेगा, तो पर ईयर एक्सपेंसेस है 20,000, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हो गया 20,000, सो 20,000 दिखेगा पीएल के डेबिट में, और बचा कितना 80,000, सो 80,000 का दिखेगा बैलेंस शीट के एसेट्स है. सिमिलरली सेकेंड ईयर 20,000 is expense for the current year, so it will be shown in the debit side of the profit and loss account. And अब बचा 80,000 में 20,000 आपने यूज कर लिया, now अब बचा 60,000, so it will be shown in the asset side of the balance sheet. Note down the accounting treatment. और राइट ऑफ की जो एंट्री होती है वो होती है आपकी, इसकी जो एंट्री होती है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ओके, now we are moving to the very important adjustment, that is a manager's commission.
Okay, so what is the manager's commission? Manager's commission. So what is the meaning of manager's commission? You know very well. मैनेजर जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन्हें हम सैलरी देते हैं, बट उनको और मोटिवेट करने के लिए, ताकि नेट प्रॉफिट जो है हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मैनेजर्स को हम नेट प्रॉफिट पे फिक्स रेट से कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजर्स कमीशन? समटाइम्स इन एडिशन टू हिज सैलरी मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। सो क्यों देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? ताकि वो मोटिवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटेड काम अपना करे कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, और अच्छे से अच्छा नेट प्रॉफिट कमा के बिजनेस को दे। सो इसकी जो एंट्री होती है बेसिकली, अगर मैनेजर्स कमीशन की देखें तो उसकी एंट्री होती है आपकी कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। मैनेजर्स जो कमीशन है इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। सो कमीशन विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट, एंड सेकंड इट इज योर लायबिलिटी, यू हैव टू पे टू द कमीशन। सो इसका पहला इफेक्ट होता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें कौन सा वैल्यू शो करती है? आउटस्टैंडिंग वाली वैल्यू शो करती है। और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सा शो करते हैं? जो टोटल कमीशन हम पे कर रहे हैं, कमीशन। तो ये तो हो गया जनरल एंट्री विच आर रिलेटेड टू द मैनेजर्स कमीशन एंड इफेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। नाउ लेट्स वी डिस्कस हाउ वी विल फाइंड आउट द मैनेजर्स कमीशन। सो मैनेजर्स कमीशन बेसिकली जो है इसका फॉर्मूला दिया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। देयर आर टू वे बाय विच वी कैलकुलेट द मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये बात ध्यान रखिएगा कि जनरली मैनेजर्स का जो कमीशन होता है वो नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ अदर वे भी दिया हो तो उसको भी हम परमिट करेंगे। सो मैनेजर्स कमीशन अगर हम नेट प्रॉफिट पे दे रहे हैं तो देयर आर टू फॉर्मूला। फर्स्ट इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी दो तरह के नेट प्रॉफिट पे मैनेजर्स कमीशन चार्ज होता है। फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड सेकंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहला ये कहता है कि हम ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें से कमीशन क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है, जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ। बिफोर चार्जिंग, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है मैनेजर्स कमीशन का नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। और आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यही चेंज है इन दोनों में, कि अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन फाइंड आउट करने को कहा गया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सो द फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन कमीशन इनटू 100 डिवाइड बाय 100। और अगर मैनेजर्स कमीशन में फाइंड आउट करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर के लिए वर्ड यूज कर रहा है, तो वहाँ पे फॉर्मूला विल बी अ नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। नेट प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो मैनेजर्स कमीशन को घटाने के पहले आए,
ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जो ट्रू नेट प्रॉफिट है वही लिखनी है। वो नेट प्रॉफिट जिसमें से मैनेजर्स कमीशन नहीं घटाया गया, बाकी सब घटा दिया गया। नोट डाउन।